Okay guys, so finally we have finished competitive section of worksheet, है ना. So आज हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स करेंगे और अपना वर्कशीट में से कुछ जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है ना वो कर लेते हैं, ठीक है. So चलो लेट्स बिगिन. We before we start, before we get into this question, first question, एक theorem है जो we should have discussed in properties of triangles chapter में. इनफैक्ट आप लोगों को स्टेट वालों को 10th में था ऑलरेडी ट्रायंगल्स में. रिमेंबर वो अक्यूट एंगल थ्योरम, ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम याद है, और अपोलोनियस थ्योरम, है ना. ये तीनों थ्योरम्स आप लोगों को 10th में थे, 10th या 9th में, आई डोंट रिकॉल, है ना. सो क्या है बेसिकली, लेट्स राइट अपोलोनियस थ्योरम. Right, so we basically use Apollonius theorem to find median का लेंथ, है ना. किसी ट्रायंगल में तीनों साइड्स दे रखा है तो मीडियन का लेंथ कैसे फाइंड करें, है ना. सो बेसिकली Apollonius theorem लिंक्स मीडियन टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, है ना. सो एनीवे हम इसका स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, स्टेटमेंट वुड बी वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है. से फॉर एग्जांपल ABC ट्रायंगल, तो से डी BC का मिड पॉइंट है, तो आपने जॉइन किया है A to D, है ना. आपने जॉइन किया है A to D, तो AD इज मीडियन, ठीक है. अच्छा, तो बेसिकली क्या है कि व्हाट अपोलोनियस थ्योरम टेल्स अस इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स, एनी टू साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स. So in this case we are going to consider AB and AC. So AB square plus AC square. Sum of squares of two sides is equal to twice the sum of the sum of half of the third side. You could take BD or CD. So square of half of the third side, in this case BD square, and square of the median containing the third side, है ना. स्क्वायर ऑफ द मीडियन ऑन टू द थर्ड साइड, यानी AD स्क्वायर, राइट. सो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड एंड मीडियन ऑन टू द थर्ड साइड, ठीक है. तो ये है अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है. ये क्यों कर रहे हैं हम, व्हाई वी डिस्कसिंग दिस. लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. Let's have a look at this question. So this would be our question number one for today in today's class. Consider a triangular plot ABC. Right. Let this be the figure with BC being 6 सेंटीमीटर्स, with BC being 6 सेंटीमीटर्स. ये जो है ये 6 सेंटीमीटर्स है टोटल, है ना. BC being 6 सेंटीमीटर्स and
Okay. Consider triangular plot ABC with sides AB 7 centimeters, AB 7 centimeters, BC 6 centimeters, and ACB 5 centimeters. ACB 5 centimeters. So you have been given all the three sides of triangle, है ना? Now a vertical lamp post is erected at midpoint D, है ना? A vertical lamp post is erected at midpoint D of side BC. A vertical lamp post is erected at midpoint D of side BC, right? Which subtends an angle of 30 degree at A. Which subtends an angle of 30 degree at A, है ना? माने ये जो वर्टिकल लैंप पोस्ट है ये सबटेंड करेगा 30 डिग्री एट पॉइंट ए. Indirectly the question is angle of elevation of the top of the tower is 30 degree as observed from vertex A. Indirectly, then what is the height of the lamp post? We need to find height of the lamp post. Okay, we need to find height of the lamp post, right? So you see this is a side view of vertical lamp post. Let this be side view of vertical lamp post. So you are observing the lamp post from point A, and angle of elevation. How much is angle of elevation? 30 degree. Is it? Acha, make it 60 degree. Right? Make it 60 degree. Let the angle of elevation be 60 degree. ठीक है? Angle of elevation be 60 degree. It is erected at point D, है ना? So this will be D. Right? ये point A है, ये point D है. Let this be top of the lamp post. D. Since he is asking us to find height of the lamp post, let this be h. तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं? ये h है, ये 60 है, तो हम बेस फाइंड कर सकते हैं इमीडिएटली, व्हिच इज बेसिकली अच्छा 60 का मतलब बेस छोटा होता है तो h/√3 है ना? तो इसको अगर हमने टॉप व्यू में कन्वर्ट किया तो आपको मिल गया AD व्हिच इज h/√3. तो ये पूरा बेस है आपके पास 6 सेंटीमीटर, AB है 7 सेंटीमीटर और AC है 5 सेंटीमीटर, राइट? So clearly you see it is pretty obvious कि ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड्स है और आपको ना मीडियन की लेंथ है आपके पास. So we need a theorem or a formula which links sides and length of median, which is obviously a Boulognese theorem, है ना? So AB का स्क्वायर 49 प्लस AC का स्क्वायर 25 is equal to 2 times AD का स्क्वायर. अच्छा AD तो h/√3, so h²/3 प्लस BD. अच्छा BD is half of the third side, 6 का आधा 3, तो 9. तो 49 plus 25 कितना होता है? 76. Is it 74? हाँ 74 upon 2 is 37. It's h²/3 plus 9. So that implies h² is equal to h²/3 is 37 minus 9, 28. Is it? So therefore h is equal to कितना आएगा? 7 3 21. 7 3 21. So 2 root 21. क्या मीटर्स में क्या? हाँ मीटर्स. तो दिस होता है. अब 5 into सेंटीमीटर है ना? इतना छोटा सा होल. अच्छा एनीवे तो बेसिकली क्या है कि ये एक क्वेश्चन है जो रिसेंटली आ चुका है मेंस में. सो आई थॉट वी शुड बी डिस्कसिंग दिस थ्योरम, है ना? वी हैव टू रिकॉल. So basically the moment he said midpoint of third side, right? Midpoint of third side. ऐसे एक सिमिलर क्वेश्चन किया था हमने मेंस में, क्वेश्चन था लेकिन वो क्वेश्चन ना उसमें ट्रायंगल आइसोसेलेस था. याद है? ट्रायंगल वाज आइसोसेलेस. वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता तो अपोलोनियस का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो आइसोसेलेस होता तो ये एंगल बाइसेक्ट होता है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है. रिमेंबर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है. दिस मेक्स थिंग्स इजियर फॉर अस. इसलिए तो ये 90 डिग्री होता है तो हम इजीली हम कोरिलेट कर सकते हैं. तो इसमें क्या है कि ये आइसोसेलेस नहीं है. दैट्स व्हाई वी नीडेड दिस थ्योरम. अच्छा क्या है? दिस थ्योरम इज डिराइव्ड इन मेनी डिफरेंट वेज. मान लो अगर ये थ्योरम याद नहीं होता तो आप कोसाइन रूल भी लगा सकते हैं. यू कुड हैव अप्लाइड कोसाइन रूल एज वेल. कैसे? यू कुड हैव फाउंड cos b from the bigger triangle, cos b from bigger triangle ABC
and you could have found cos b from smaller triangle ABD. दोनों को इक्वेट किया तो आपको h में एक कंडीशन मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था, है ना। सो है ना, you could try this other method. So find cos b in both the triangles, in triangle ABC and triangle ABD, और दोनों को इक्वेट करने का, तो आपको h में कंडीशन मिल जाएगा, ठीक है। There you go. This was your first question. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट ऑफ two poles, two vertical poles, obviously two vertical poles of heights, two vertical poles of heights 21 meters and 21/2 meters. Two vertical poles of height 21 meters and 21/2 meters. They stand apart on a horizontal plane. ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ना, माने वो दोनों एक ही लेवल पर है, दोनों एक ही लेवल पर है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, ठीक है। So two vertical poles, one of 21 meters and another 21/2 meters, stand on a horizontal plane, right? Then find the height of point of intersection of lines joining top of each pole, to the bottom of the other. Then find the height of the point of intersection of lines joining top of each tower to the bottom of the other, है ना। तो top to bottom, ये दोनों लाइंस यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, तो इसकी हाइट निकालनी है। You want to find height of this, right? So let this be h. Since we need to find this height, let this be h, है ना। तो बेसिकली क्या है कि अपने पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये let this be h1, height of the first pole, and let this be h2, height of the second pole, ठीक है। and h be the height of their point of intersection, है ना, line joining top to bottom. Then क्या है बेसिकली, think of these as resistors. Think of h1 as r1 and h2 as r2. तो h, think of it this way कि h will be resistance of the circuit provided these two were in parallel combination, है ना। Think of it this way कि ये दो अगर parallel combination में होते हैं these two resistors, तो उसका जो effective resistance, total resistance जो होता है, इसको हम rp से डिनोट करते हैं, है ना। तो वो ये होता है, ये वाला हाइट, है ना। सो बेसिकली अपने पास फॉर्मूला क्या है, वी नो कि 1/rp, इन दिस केस 1/h इज 1/h1 प्लस 1/h2, और इसको सिंप्लीफाई किया तो दिस इज व्हाट वी गेट, h इज इक्वल टू h1 h2 अपॉन h1 प्लस h2, ठीक है। ये रखना है आपको, ये लर्न करना है, ठीक है। दिस विल हैव टू रिमेंबर, अपन डिराइव भी करेंगे अभी। तो आंसर क्या है अल्टीमेटली, h इज इक्वल टू h1 h2 21/2 अपॉन 21 प्लस 21/2, ठीक है। सो व्हाट डू वी गेट, 21 into 21/2 अपॉन कितना होगा, 21 into 3/2 होगा, सही है क्या। 21 कॉमन लिया तो 1 plus 1/2 3/2, कैसे भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक 21 कटेगा, 2 कटेगा, 3 7 are 21, therefore h is equal to 7 meters, right? तो anyway ये आया कैसे, how did we get this formula, what's the idea? एक्चुअली क्या है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में जो सिमिलैरिटी से भी सॉल्व किया जा सकता है। यू कैन आल्सो सॉल्व यूजिंग सिमिलैरिटी।
क्या आपने नोटिस किया ये जो ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल के साथ सिमिलर है, और ये वाला बड़ा ट्रायंगल इसके साथ सिमिलर है ना? ये सिमिलैरिटी सब सॉल्व किया गया है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हैं क्या? कैन वी सॉल्व दिस बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री? कैन वी? यस, कैसे? ठीक है, लेट्स नेम देम ए बी सी डी ई एफ, है ना? तो ये ट्रायंगल में tan अल्फा इज इक्वल टू ये ट्रायंगल में tan अल्फा, दोनों सेम, सही है? फिर इमेजिन कि दिस इज अल्फा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप इज अल्फा फ्रॉम बॉटम, सो ये दो ट्रायंगल्स में tan अल्फा सेम है, सो tan अल्फा इज इक्वल टू ये वाला ट्रायंगल में tan अल्फा इज h अपॉन, अच्छा ये कितना है ए h अपॉन ए, अच्छा बड़ा ट्रायंगल में tan अल्फा इज h2 अपॉन ac, करेक्ट? अच्छा तो ये हो गया आपका पहला कंडीशन नंबर। दूसरा कंडीशन, अब देखो मान लो कि ये बीटा है, तो ये वाला ट्रायंगल में tan बीटा h1 अपॉन ac, तो tan बीटा इज h1 अपॉन, छोटा से स्टार्ट करेंगे, h अपॉन CE इज इक्वल टू h1 अपॉन AC, ये हो गया आपका कंडीशन नंबर 2। तब लोगों ने ये AE AC CE AC को एलिमिनेट करना है, कैसे? अच्छा ये देखो AE एंड CE जो है वो AC के पार्ट्स है, दोनों को ऐड किया तो कितना होना चाहिए? AC, तो हम इसमें से AE फाइंड करेंगे। व्हाट इज इट इफ यू फाइंड AE फ्रॉम दिस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया AE ऊपर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो AE विल बी इक्वल टू HAC अपॉन H2, HAC अपॉन H2। सिमिलरली इसमें से CE कितना होगा? CE उधर गया, ये ऊपर, HAC अपॉन H2, दोनों को ऐड किया, लेट्स ऐड देम बोथ, दोनों को ऐड किया तो AE प्लस CE इज AC, और RHS में H टाइम्स AC अपॉन H1 प्लस AC अपॉन H2, तो क्लियरली AC कटेगा दोनों जगह, है ना? AC कटेगा, तो ये H नीचे आएगा तो 1 अपॉन H इज 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H, ठीक है? तो क्या किया हमने कि इट्स प्रीटी ऑब्वियस है ना, ये छोटा ट्रायंगल ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, बेसिकली ये सिमिलैरिटी है, दिस इज सिमिलैरिटी, ये सिमिलैरिटी ही यूज किया हमने, लेकिन हमने एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ वन फ्रॉम बॉटम ऑफ द अदर इज अल्फा, एक का बीटा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये ऐसे किया हमने। बट एनीवे गाइस ये याद रखना है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ऐसे लगने ना कि पैरेलल, देखो स्ट्रेट लाइंस है ना, अरे स्ट्रेट देखो पैरेलल है, h1 h2 h3 सॉरी h1 h and h2 आर पैरेलल, isn't it? ओके फाइन, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्या है वो क्वेश्चन? अब देखो, अब हम आते हैं अपना वर्कशीट पे, है ना? वर्कशीट पे जो अच्छे क्वेश्चन है वो करेंगे, है ना? बाकी क्वेश्चंस हम अपना क्लास में डिस्कशन में कवर कर सकते हैं, ठीक है? तो आते हैं पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 60, पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 60। पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 60। एकदम अजीब सा क्वेश्चन है ना, वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन। आई मीन अनलेस अगर आप लोगों ने पहले सॉल्व नहीं किया तो ये आप सॉल्व कर नहीं कर पाओगे। ये एक्चुअली आरडी शर्मा में है और यही क्वेश्चन ना 2021 में दिस ईयर ये क्वेश्चन आया था, 10th आरडी में है ना? जो सीबीएसई वाले हैं वो लोग जानते हैं ये क्वेश्चन, है ना? the angle of elevation of top of a hill या mountain from a point is alpha, ठीक है? there is a hill and remember from a point on the horizontal, usually it is always horizontal, from a point on the horizontal is alpha, है ना? ठीक है?
let this be that point. तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है कि ये अल्फा है, ठीक है। अच्छा, आफ्टर वॉकिंग b meters towards the top of a slope ए यार कितना हॉरिबल है, कब आया था ये क्वेश्चन, डीसी क्या है, डीसी of a slope inclined at an angle beta to the horizontal, the angle of elevation of top becomes gamma. मतलब what is it trying to say is कि क्या है कि एक पॉइंट से उन्होंने मेजर किया कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप इज अल्फा, लेकिन वो क्या है कि वो इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, he is not going, he is not moving और he doesn't want to reach top along this, तो उन्होंने कोई दूसरा स्लोप के along गया ऊपर की तरफ गया है some other slope, मान लो along say this particular direction, say along this particular direction, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इनिशियली इट वाज अल्फा, लेकिन he didn't go towards the top along this slope, he went upwards in a different angle, different slope, तो वहां कितना मीटर्स कवर किया उन्होंने, b मीटर्स, he traveled b मीटर्स along this slope, और वहां से उन्होंने ऑब्जर्व किया है फिर से, और ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, दिस वाज फाउंड टू बी कितना, gamma. तो रिमेंबर एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो ये दे रखा है gamma. तो इनिशियली ये वाला पॉइंट से अल्फा था, एंड ही डिड गो अपवर्ड्स एट एन एंगल बीटा, ठीक है। नाउ अल्टीमेटली ही इज आस्किंग अस टू प्रूव कि हाइट ऑफ द हिल इज सो एंड सो, अल्फा बीटा गामा के इसमें टर्म्स में फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, सो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट। सो ही वेंट टुवर्ड्स द टॉप एट एन एंगल बीटा एंड ही डिड वॉक हाउ मच डिस्टेंस, b मीटर्स, है ना। अच्छा, और वहां से उन्होंने टॉप को ऑब्जर्व किया है एंड ही फाउंड एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी gamma, देन फाइंड हाइट ऑफ द हिल या माउंटेन। So since he is asked us to find height of the hill or mountain, let the height of the hill or mountain be h. Let this be h naturally. And आपने नोटिस किया ये पूरा बड़ा ट्रायंगल का ना ये अल्फा है अपने पास, है ना, अल्फा है अपने पास, ठीक है। अच्छा, एंड यू सी ये देखो ये वाला डिस्टेंस है अपने पास, ये वाला डिस्टेंस है, तो एक काम करूंगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा यहाँ से, फिर 90 हो जाएगा, ठीक है। चलो पहले नामकरण कर लेते हैं इस फिगर का, let this be A, let this be B, C, D, E and let this be F, ठीक है। तो ये ट्रायंगल में ना, ये ट्रायंगल में हम क्या, अच्छा हाइपोटेन्यूज है तो हम ऑपोजिट भी फाइंड कर सकते हैं और एडजेसेंट भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये देखो एक अपने पास एक शॉर्टकट ट्रिक है, ये शायद से हमने पहले किया था कोसाइन रूल के बाद, आई डोंट नो। तो जब ये अल्फा होता है, मान लो हाइपोटेन्यूज इज सम x से, हाइपोटेन्यूज इज x और अपने पास अल्फा है, तो हमेशा याद रखिए कि जो बेस है ना वो x cos अल्फा होता है, बेस जो है x cos अल्फा, और हाइट जो है वो x sin अल्फा होता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, हम बाद में वेक्टर्स के वक्त करेंगे, और शायद से आप फिजिक्स में भी करोगे फोर्सेस के वक्त रिजॉल्व करते हो। तो जो साथ में है, देखो ये अल्फा है तो एडजेसेंट वाला cos, ऑपोजिट वाला sin, सिंपल बात है, ठीक है। तो सिमिलरली AC जो है वो B cos अल्फा होगा, AC इज B cos अल्फा, तो BC जो रहेगा B sin अल्फा रहेगा, BC इज B sin अल्फा। तो क्या है बेसिकली आप ट्रायंगल में sin अल्फा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज वो सब कर सकते हैं, बट देखो बच्चे लोग करते हैं ऐसा, है ना। तो अगर आपको लगता है कि अपन बच्चे हैं तो अपन वैसे करेंगे, बट अरे बीटा है ना, वजह चेकिंग कि आप अलर्ट होती नहीं। चलो ये बीटा है और ये भी बीटा है ना। अच्छा, और ये देखो ये पूरा अल्फा था, है ना, हाँ ये पूरा अल्फा, अच्छा प्रिंटिंग मिस्टेक। अच्छा तो अब क्या करें,
अच्छा ये b sin थीटा है तो ये भी b sin थीटा हो। अगर ये b sin थीटा होता, ये पूरा h है, तो ये कितना होगा h माइनस b sin थीटा। तो ये वाला h माइनस b sin थीटा। अच्छा आपने नोटिस किया ये ट्रायंगल में ऑपोजिट है और अपने को निकालना है एडजेसेंट, तो bf मिल जाएगा। तो bf कितना होगा यहाँ से, तो bf वुड बी, देखो अपने पास हाइट है, बेस निकालना है तो डिवाइड करते हैं, तो h माइनस बी साइन बीटा अपॉन tan गैमा। अगर अपने पास bf है इसका मतलब अपने पास क्या है, cd है, तो यही तो है cd, is it? Now you see if you look at the bigger triangle, we have opposite and we have total base as well, पूरा बेस भी है अपने पास। तो अल्टीमेटली बड़ा ट्रायंगल में अगर आप tan अल्फा अप्लाई करोगे, बड़ा ट्रायंगल में tan अल्फा इज h अपॉन ये पूरा AD का मतलब b cos बीटा प्लस ये वाला h माइनस b sin बीटा अपॉन tan गैमा। देखो अब अपना क्वेश्चन में कहीं पे भी tan नहीं है, तो शायद उन्होंने क्या किया, गोल्डन रूल अप्लाई किया, tan को sin cos में कन्वर्ट किया होगा उन्होंने। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करना, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये tan अल्फा से दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे, तो ये होगा b tan अल्फा cos बीटा प्लस दिस, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा h tan अल्फा अपॉन tan गैमा माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है b tan अल्फा sin बीटा अपॉन tan गैमा इज इक्वल टू h, ठीक है। अच्छा ये देखो h वाला टर्म्स एक साइड, तो क्या हो रहा है, और इनमें से हम b कॉमन ले सकते हैं, इनमें से हमने b कॉमन लिया और tan अल्फा को लिख दिया sin अल्फा cos बीटा अपॉन cos अल्फा, ठीक है। और यहाँ माइनस tan अल्फा होगा sin अल्फा अपॉन cos अल्फा और sin बीटा, और नीचे पे tan गैमा, तो sin गैमा अपॉन cos गैमा, तो ऊपर में cos गैमा नीचे में sin गैमा इज इक्वल टू में RHS में ये भी h वाला टर्म है, ये भी h वाला टर्म है, तो h कॉमन लिया तो 1 माइनस tan अल्फा अपॉन tan गैमा, tan अल्फा का sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, नीचे में tan गैमा है तो sin गैमा, ऊपर में cos गैमा, ठीक है। मैंने रीअरेंज किया और गोल्डन रूल भी अप्लाई किया साइमल्टेनियसली। अच्छा तो आपने नोटिस किया cos अल्फा तो है ही ऑलरेडी, sin गैमा मिसिंग है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय sin गैमा, तो ये हो जाएगा b टाइम्स, और देखो sin अल्फा कॉमन है, तो मैं टेक b sin अल्फा कॉमन, ठीक है। तो यहां से sin गैमा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो sin गैमा cos बीटा माइनस cos गैमा sin बीटा अपॉन sin गैमा cos बीटा, ठीक है। और RHS में h टाइम्स sin गैमा cos अल्फा माइनस cos गैमा sin अल्फा अपॉन sin गैमा cos अल्फा, ठीक है। तो sin गैमा cos अल्फा गेट्स कैंसिल्ड, तो अल्टीमेटली अपने को h निकालनी है, तो ये ऊपर में b sin अल्फा, ये कंपाउंड एंगल फॉर्म में लगेगा sin का, व्हिच इज sin गैमा माइनस बीटा अपॉन में ये sin गैमा माइनस अल्फा, ठीक है। You know this can be this is a very clumsy question है, बहुत clumsy question है,
तो आते आगे लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट वी हैव डन, है ना, क्योंकि मैं आप लोगों को अभी एक क्वेश्चन दूंगा जो नंबर्स में होगा, जिसमें अल्फा बीटा गामा 30 डिग्री 45 75 एक्सेट्रा एक्सेट्रा होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को वो क्वेश्चन सॉल्व करनी है, सेम इसी तरह से आपको सॉल्व करनी है, लेकिन उसमें आपके पास बी कितना डिस्टेंस है, अल्फा कितना डिग्री है, बीटा कितना डिग्री है, वो सब आपको मालूम रहेगा पहले से ही, है ना। तो सिंस वी हैव टू डील विद अल्फा बीटा गामा, हम बहुत कंफ्यूज हो गए। तो आप लोगों ने यही स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। तो क्या क्या आगे लेट्स अंडरस्टैंड किया, है ना, लेट्स सी। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा इज गिवन टू अस, सबसे बड़ा वाला एंगल, है ना, सबसे बड़ा एंगल अल्फा है, सॉरी सबसे बड़ा एंगल गामा है यहाँ, ठीक है, सबसे बड़ा एंगल गामा है। एनीवे, तो अल्फा फ्रॉम ए इनिशियल एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके बाद कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है उन्होंने, डिस्टेंस बी ट्रैवल किया है अलोंग एंगल बीटा, और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन वाज फाउंड टू बी गामा। देन फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन या हिल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया बेसिकली, फर्स्ट वी अंडरस्टूड कि हमने हाइट निकालनी है, तो हमने इसको h ले लिया, ये पूरा इसको h ले लिया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, वी हैव टू डील विद राइट एंगल ट्रायंगल, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो बेस निकाला और हाइट निकाला, और ये वाला हाइट हमने यहाँ यूज किया, इससे हमने ये वाला हाइट निकाला, और ये वाला हाइट से ये वाला बेस निकाला, दिस इज सेम एज दिस, तो पूरा बेस मिल गया आपको। तो पूरा बेस है, पूरा हाइट है, तो बड़ा ट्रायंगल में हमने tan वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर हमने पूरा रीअरेंज किया, h वाले टर्म्स ऑन वन साइड, b वाले टर्म्स ऑन अदर साइड, फिर गोल्डन रूल एंड देन कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, ठीक है। तो हम इस पे ना एक क्वेश्चन करेंगे, है ना, इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो वो क्वेश्चन आप लोगों को कैसे करना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द हिल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग थ्रू फुट ऑफ द हिल इज फाउंड टू बी 45 डिग्री, इज फाउंड टू बी 45 डिग्री। तो इसका मतलब क्या दे रखा है, ये 45 कौन होगा, अल्फा होगा, अल्फा इज 45 डिग्री, ठीक है। आफ्टर